till now in chemical coordination? Any doubts? कोई डाउट है? Hypothalamus, it is an endocrine gland as well as neural part. Okay, so hypothalamus we have seen, it contain neurosecretory cells. It contain neurosecretory cells, nothing but neuron. And why we are calling neurosecretory cells? Because they are performing as neuron as well as secreting hormones, right? These neurons are secreting hormones from the hypothalamus, and those hormones are traveling along the axon and then enter into posterior pituitary gland, right? The hormone secreted from the hypothalamus, they travel along the axon of neuron and then they are released from posterior pituitary gland. Whereas the hypothalamus and anterior pituitary gland are connected by means of portal circulation. First neuron secretes some hormone, those hormone travel along the axon and then enter into portal circulation, and from there it enter into anterior pituitary gland. Now you got this? Clear है ये concept? और कोई doubt? The hormones produced from the hypothalamic neurons travel along the axon, then enter into portal circulation, then enter into anterior pituitary gland. Can you tell some of the hormone produced by this neuron? GnRH hormone, TSH RH hormone. Confuse नहीं करना. TSH RH hormone is produced from hypothalamus. TSH hormone is produced from anterior pituitary. है ना? फ्लैट पीजी याद रखे ना. FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, GH. अब एग्जामिनर क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन is secreted from hypothalamus. Growth hormone releasing hormone is produced from hypothalamus. अब क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस. नीचे ऑप्शन में 8-9 हार्मोन्स के नेम्स गिवन हैं. तो जिस जिस हार्मोन के नेम में रिलीजिंग है, रिलीजिंग हार्मोन मींस कंपलसरी फ्रॉम हाइपोथैलेमस. डोंट कंफ्यूज. ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन इज फ्रॉम hypothalamus. Growth hormone is from anterior pituitary gland. क्लियर है? यस. जितने भी हार्मोन यहां पे हैं, इन सब के रिलीजिंग हार्मोन है इसके पास, हाइपोथैलेमस के पास. ओके, बोलो. Endocrine glands are ductless. Definitely there is no duct here. No, not duct. Duct का मतलब होता है, suppose there is a gland, maybe unicellular or multicellular, and if that gland is connected to the target organ through a tube, मतलब gland हो गया source and target organ. After some distance, target organ is there. After some distance, target organ. Okay? Yes. So all the exocrine glands are connected to the target organ. Salivary glands are connected to the target organ. Okay? चलिए, और कोई डाउट है? Milk is secreted from exocrine gland ही बोलना पड़ेगा. No, not necessary. Exocrine gland secrete milk, exocrine gland secrete saliva, exocrine gland secrete earwax. कंप्लीट इसके बारे में दिया हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इन एनिमल टिश्यूज टॉपिक. कौन सा?
Pars distally secrete how many trophic hormones? Trophic. How many hormones नहीं? How many? At pars distally secrete how many hormones? Pars distally secrete 6 hormone. Flat PG. अगर क्वेश्चन है पार्स डिस्टली सिक्रीट हाउ मेनी ट्रॉफिक हार्मोन, कौन कौन से नेम में ट्रॉफिक आ रहा है देखो, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, और कौन सा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी ट्रॉफिक हार्मोन ही है, नाम में नहीं है ट्रॉफिक, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायराइड हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे यहां पे नेक में क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या चाहिए आपको, टीएसएच चाहिए, टीएसएच एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड देन थायराइड ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स। ओके, चलिए अभी कोई क्वेश्चन है तो बोलो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई डाउट आया है केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो जरूर पूछ लेना। टिल नाउ टू इंपॉर्टेंट मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहां से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोन्स हैं, वो अच्छे से याद रखना है। देन थायराइड ग्लैंड भी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे याद रखना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर ले सकते हैं, हाशिमोटोस डिसीज बोल के, हाशिमोटोस डिसीज, Hashimoto's disease also called thyrotoxicosis, thyrotoxicosis है ये। And what happens in Hashimoto's disease? Autoimmune disorder है ये, autoimmune disorder है, our own antibodies they go and destroy thyroid gland, autoimmune disorder, own antibodies destroy thyroid gland, destroy thyroid gland. Okay, till now how many autoimmune disorder we have discussed? Yes, till now we have seen autoimmune disorder like myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, as well as Hashimoto's disease. So there is a clear cut reason is not known why our own antibody destroy our own organ. We don't know clearly genetic or molecular basis. We don't know autoimmune disorder scientific reason. Still research is going on. Hashimoto's disease बल्कि याद रखना है बस autoimmune disorder है, own antibody जाके thyroid gland को destroy करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन को हम बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन बोलेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड मीन्स ए स्मॉल प्रोटीन, नॉट ए लार्ज प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन को बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम आज के टॉपिक पे जा रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, it is also a very very important topic in chemical coordination. More information is there in this topic, adrenal gland. So adrenal gland, first of all, location, it is located on anterior part of kidney. Anterior part of kidney is having adrenal gland, anterior part में। Anterior part of the kidney is having adrenal gland. Adrenal gland is having outer part called adrenal cortex, adrenal cortex, and inner part is adrenal medulla. There are two areas in adrenal gland, outer area of the adrenal gland, adrenal cortex, inner area, adrenal medulla.
हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला आर डिफरेंट है. तो एड्रिनल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड suprarenal gland, where they are located anterior part to kidney के ऊपर है. one on each kidney. ओके, राइट किडनी पर एक एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी पर एक एड्रिनल ग्लैंड. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, देन एड्रिनल मेडुला. डिस्कस करेंगे, फंक्शंस देखेंगे, डिसऑर्डर्स क्या हैं देखेंगे. ओके, चलिए अब हम जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स. In short, the hormone secreted from adrenal cortex, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन बनते हैं, इन शॉर्ट वी कॉल देम कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं इनको. हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, एंड हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस बोलेंगे. Hormones of adrenal cortex, corticoid. Hormones of adrenal medulla, catecholamines. Combinedly, corticoid is not one hormone. Group of hormones हैं वो. Okay. चलिए अब हम जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ. एड्रिनल ग्लैंड divided into two parts: adrenal cortex, एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स हैं: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा and zona reticularis. Zona fasciculata, zona reticularis. तो यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स. तो रिमेंबर, जोना ग्लोमेरुलोसा इज आउटरमोस्ट. व्हाट इज द आउटरमोस्ट? जोना ग्लोमेरुलोसा. और जोना रेटिकुलरिस इनरमोस्ट. क्वेश्चन पूछ सकते हैं अरेंजमेंट के ऊपर. व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स? इनर टू आउटर साइड या आउटर टू इनर साइड. कोई एक अच्छे से याद रख लो. आउटर से इनर साइड याद रख लो. ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस. गो फॉर रेस्ट. तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलोसा. जोना तो कॉमन ही है तीनों में. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, F फॉर फेसिकुलेटा, R फॉर रेटिकुलरिस. और एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. इसमें कोई फर्दर रीजन्स नहीं है. एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन्स हैं: एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन. Adrenaline is also called epinephrine, और ये है नॉर एफिनेफ्रिन. नॉन नहीं, नॉर एफिनेफ्रिन. And remember, the action of adrenaline and noradrenaline is same. एड्रिनलिन जो काम करेगा, नॉर एड्रिनलिन भी वही काम करेगा. सिनर्जिस्टिक हैं ये. और दोनों हार्मोन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? बोलो. कैटेकोलामाइंस बोलते हैं. कैटेकोलामाइंस combinedly. एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन combinedly कैटेकोलामाइंस. Now let us list out the hormones of adrenal cortex.
पहले ये 3 पार्ट्स बताया मैं, अब इनके हार्मोन्स कौन से हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, फिर एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स, so adrenal cortex secrete which hormone? Corticoid hormone. They secrete which hormone? Corticoid hormone. And corticoid hormones are how many types? 3 types of corticoids: glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex corticoid. सेक्स कॉर्टिकॉइड है, या एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड भी बोल सकते हैं, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड है। नेम्स बहुत ज्यादा हैं इधर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये 3 हार्मोन है, याद रखना एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन्स, 3 रीजन्स, दैट इज डिफरेंट। गो फॉर रेस्ट, दोज आर द रीजन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन, ओके, और वो हार्मोन्स कैसे याद रखेंगे? गो मेक स्वीट, गो मेक स्वीट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम और एक नाम से बोलते हैं, कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टी में क्या बोला, नेम्स बहुत ज्यादा हैं इधर, फंक्शन आसानी से याद रख सकते हैं हम, नेम ज्यादा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरॉन है, अल्डोस्टेरॉन है, एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड्रोजन है, याद रखना एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन नहीं है, एंड्रोजन है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कंपलसरी एंड्रोजन जरूर बनेंगे, इवन इन फीमेल्स, ओके, एंड्रोजन्स। नाउ वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, अल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, एंड्रोजनिक स्टीरॉइड क्या कर रहे हैं, दैट्स ऑल। फंक्शंस समझ गए? सिंपल है, अगर सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के रीजन्स याद रखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन याद रखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं उनके फंक्शन याद रखो, और कोई डिजीज है तो याद रख लो। तो यहां पे अब हम कॉर्टिसोल की बात करेंगे। फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या दिया है हमारे बुक में? कॉर्टिसोल है। देयर आर मेनी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उन सब के बारे में याद नहीं रखना है, कॉर्टिसोल के बारे में याद रखना है। मोस्ट कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज cortisol. It is a group of hormone, glucocorticoid. In that one hormone is given in our book, that is cortisol. इसको हम फोकस करना है, cortisol. Name itself indicate glucocorticoid. Gluco का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, concerned with carbohydrate metabolism, carbohydrate metabolism. Stimulate ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। इवन अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक रिवाइज करेंगे तो वहां पे आएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच इंक्रीजेस मैनीफोल्ड इन प्रेग्नेंट वुमन। व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच इंक्रीजेस मैनीफोल्ड इन प्रेग्नेंट वुमन? It include cortisol also. Cortisol is also increasing. Thyroxine is increasing in pregnant woman.
Stimulate gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? Conversion of non-carbohydrate into carbohydrate. Non-carbohydrate converted into carbohydrate. Non-carbohydrate से carbohydrate में convert हो जाएगा. That process is called gluconeogenesis. Non-carbohydrate से carbohydrate में convert होना. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. Many times in our body, whenever we are in fasting, not taking meals properly, skipping meals, that time our body is having shortage of carbohydrate. In that case, प्रोटीन और फैट जो है हमारे बॉडी में ब्रेक होके कार्बोहाइड्रेट बन सकता है. प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. इवन हम कॉर्टिसोल के बारे में कल भी लिखे. कॉर्टिसोल हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन, लिखे ना. आरबीसी फॉर्मेशन में भी काम करता है ये. कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है. एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है. वेदर इन्फ्लेमेशन इज ए गुड थिंग और बैड थिंग. इन्फ्लेमेशन इज ए डिफेंस रिएक्शन, आपको मालूम होना चाहिए. डिफेंस रिएक्शन है ये. Whenever we get attack from the pathogen, our body tries to kill that pathogen by means of inflammation. Inflammation मतलब redness, swelling, burning in skin. अगर skin में redness है, swelling है, burning sensation है, heat है, temperature ज्यादा हो रहा है, तो ये सब inflammatory reaction है, defense reaction है. Usually mosquito bite के बाद हम देख सकते हैं. मस्कीटोस क्या है ना, वेक्टर फॉर मेनी डिसीजेस हैं. बहुत सारे डिसीजेस स्प्रेड होते हैं मस्कीटो से. Now whenever when pathogen mosquito inject any pathogen into the body, so at that site only redness देख सकते हैं आप, swelling देख सकते हैं, burning sensation और heat भी होती है वहां पर थोड़ी सी. वहां पे उस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा रहता है. तो एंटी मतलब ये हार्मोन कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन नहीं कराएगा, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कराएगा. मतलब कॉर्टिसोल सप्रेस इम्यूनिटी है. अभी तक पॉजिटिव रोल देख रहे थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन करा रहा है ना. कभी कभी कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल सप्रेस इम्यूनिटी भी लिखना है. नेगेटिव रोल भी कर रहा है. देखिए सप्रेस इम्यूनिटी. और ये भी जरूरी है एंटी इंफ्लेमेटरी. अगर हमारा बॉडी सिंपल सिंपल चीजों को इन्फ्लेमेशन करते बैठे, अगर हमारा बॉडी जो है ना बहुत सेंसिटिव हो गया है, सेंसिटिव थोड़ा सा भी हाउस फ्लाई भी अगर बैठ गया है उसके ऊपर और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहना चाहिए. तो वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी का रोल करेगा ये कॉर्टिसोल, है ना. जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जाके हाँ एंजॉय करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं. बचाना तो बीच में जाना, दोनों के बचाना. सेम ऐसे ही एंटी इंफ्लेमेटरी है ये. अब लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, इन्फ्लेमेशन बोल तो फाइट है, अब फाइट को रोकना है, जाके कॉर्टिसोल रोकेगा. तो ये थे कॉर्टिसोल के रोल. यूजुअली बच्चे ये नहीं पढ़ते. देखिए एंटी इंफ्लेमेटरी रोल, सप्रेस इम्यूनिटी, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ये कॉर्टिसोल के रोल हो गया. ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इतना था. नाउ गो मेक स्वीट. व्हाट इज सेकंड? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरॉन है. What is the function of aldosterone? It help in maintaining water and electrolyte balance.
help in maintaining water and electrolyte balance. तो बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दैट इज मेंटेन्ड बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड से मेंटेन होता है वो अल्डोस्टेरॉन. इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना होता है. ओके. अल्डोस्टेरॉन कहां से अब्सॉर्ब करता है वाटर? अब्सॉर्ब वाटर and Na plus ion from distal parts of nephron. distal parts of nephron. कल ही पढ़े देखिए हम, एक लाइन आई थी, थायराइड हार्मोन आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. हो सकता है मोर देन वन हार्मोन कैन डू सेम वर्क. थायराइड हार्मोन also regulate water and electrolyte balance. Aldosterone also help in maintaining water and electrolyte balance. थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करेगा. कई बच्चे पूछेंगे सर थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैसा कनेक्शन है? पाइनियल ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैसा कनेक्टेड है? सो मेनी हार्मोन्स आर डूइंग सेम वर्क समटाइम. Pineal gland also influences menstrual cycle. Thyroid hormone also influences menstrual cycle. And obviously जो direct hormone है FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये तो है ही है कंपलसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इनडायरेक्ट रोल भी है बहुत सारे हार्मोन्स का. Pineal gland also influences menstrual cycle. Thyroid hormone also influences menstrual. ये जहां पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं चीजें उसको हाईलाइट करके रख लेना बुक में. माइंड नहीं जाएगा ना, पाइनियल ग्लैंड आल्सो रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां कोई भी नहीं सोचेगा, तो इसलिए उसको हाईलाइट करके रखना है. स्टेटमेंट आ सकते हैं, बस अल्डोस्टेरॉन में इतना याद रखना है. अब आइए सेक्स कॉर्टिकॉइड. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं या एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड हैं? एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. फॉर्मेशन क्या कर रहा है देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स, इवन अग्रेशन को भी कंट्रोल कर लेता है. अग्रेशंस. जो बॉडी हेयर्स हैं आफ्टर मैच्योरिटी दे आर गोइंग टू अपीयर. एक्सिलरी हेयर्स हैं, बॉडी हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स हैं. दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड. मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं. इवन फीमेल्स में फेशियल हेयर्स भी आ सकते हैं, पॉसिबल है. A female can have moustache and beard if there is excess secretion of androgenic steroid. A female with moustache and beard because of more androgens from adrenal cortex. In every female they are produced. एड्रिनल कॉर्टेक्स से हर फीमेल से यह हार्मोन बनता है एंड्रोजेंस. अगर किसी में ज्यादा हो जाए ये हार्मोन तब जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मोस्टैक एंड बियर्ड डेवलपमेंट इन फीमेल्स. मेल्स में कंपल्सरी एंड्रोजन एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी बन रहे हैं. एंड्रोजेंस आर आल्सो प्रोड्यूस इन मेल्स फ्रॉम किडनी, किसमें, टेस्टिस के जो लेडिक सेल्स हैं दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग एंड्रोजन. तो मेल में एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स. तो फीमेल में भी अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस प्रॉब्लम हो गया, कोई डिसऑर्डर, तो फीमेल में भी शुरू हो जाते हैं मोस्टैक एंड बियर्ड. ओके, नाउ रिमेंबर वन डिसीज कॉल्ड एडिसन्स डिसीज.
ओनली न्यू एनसीईआरटी में आया है ये एडिशन डिसीज। ये हो रहा है अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। याद रखना, एड्रीनल मेडुला नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। डिस्टरबेंस हो जाएगा, disturbance in carbohydrate metabolism. In such patients, carbohydrate metabolism gets affected. Carbohydrate metabolism affected because adrenal cortex include one of the important hormone, glucocorticoid, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, मेन इंग्रेडिएंट इन आवर डेली फूड इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड इन एंडीसन डिसीज व्हाट हैपेंस, अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वीकनेस हो जाएगी। आपको एनर्जी कौन दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वीकनेस होगा, फैटिग, हमेशा टायर्ड फील करेंगे इवन आफ्टर ईटिंग। वीकनेस, फैटिग, दीज आर द सिम्टम्स। तो ये थे एडिशन डिसीज। ये सिर्फ न्यू एनसीईआरटी में आया है, क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं पूछा है एडिशन डिसीज। नेक्स्ट, अब आ गए हम एड्रीनल मेडुला की तरफ। एड्रीनल मेडुला, हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला, व्हाट यू कॉल एड्रीनल मेडुला हार्मोन्स? एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स को हम बोलेंगे कैटेकोलामाइंस। अब कैटेकोलामाइंस के फंक्शन याद रखना है। फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस, एक लॉन्ग लिस्ट है, हार्मोन फंक्शन बहुत ज्यादा है इसके कैटेकोलामाइंस के। फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस, एड्रीनलिन, यानी तो और एक नाम दे सकता हूं मैं, नॉर एड्रीनलिन। इनके फंक्शन, टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, रिमेंबर वन सिचुएशन। What are the changes in your body when dog is barking behind you and running behind you? आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? अब वो चेंजेस पूरे लिख डालो इधर। नंबर 1, अलर्टनेस इंक्रीजेस, है ना? हो सकता है हम आराम से जा रहे थे होंगे एंड डॉग इज रनिंग बिहाइंड यू एंड बार्किंग, तो अब परेशानी है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगा। और क्या है? प्यूपिलरी, डरने के बाद क्या होता है? प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है। और क्या होता है? पाइलो एरेक्शन हो जाता है। पाइलो एरेक्शन मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ बॉडी हेयर्स। डर के मारे क्या है ना, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाइलो एरेक्शन मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ बॉडी हेयर्स। अब भागने के लिए एनर्जी चाहिए, अब हाँ है ना, एनर्जी चाहिए। अब क्या करना भागने के लिए? एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो जो है बॉडी में सबको ब्रेक डाउन कर डालो। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इतना तेज भागेंगे कि नॉर्मली उतना तेज हम नहीं भाग सकते। नॉर्मली उतना तेज नहीं भाग सकते क्योंकि अब एनर्जी बहुत ज्यादा मिलने वाली है उस सिचुएशन में। कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बो, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा बनेगी। प्रोटीन और साथ ही साथ फैट भी ब्रेक होने लगता है। इसके साथ जो है हार्ट बीट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हार्ट रेट इंक्रीजेस,
पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट बढ़ेगी, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन होगा बॉडी में, स्वेटिंग होने लगेगी, स्वेटिंग होगी, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और साथ ही साथ ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। इन सारे सिचुएशन को, ये फंक्शन याद रखने के लिए सिचुएशन क्या है, डॉग इज बार्किंग एंड रनिंग टू कैच यू। तो क्या क्या चेंजेस हैं आपके बॉडी में, अलर्टनेस इंक्रीज, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो एरेक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबके साथ एक तो एक बार हुआ होगा, इससे नहीं हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज, स्वेटिंग, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन फास्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाई पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं एड्रिनलिन का काम अलग है, नॉर एड्रिनलिन का काम अलग है, गलत बात, दोनों का काम सेम है, बोथ आर हैविंग सिनर्जिस्टिक एक्शन, याद रखो, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन सिनर्जिस्टिक एक्शन। व्हाट इज सिनर्जिस्टिक एक्शन, कल ही बताया मैं, सेम एक्शन, if both the hormone, two different hormones are having same action, we call it synergistic, synergistic action बोलेंगे उसको, ओके। नोट कर लीजिए, याद रख सकते हैं ना इतने सारे। तो एड्रिनल ग्लैंड में इंफॉर्मेशन इसलिए ज्यादा बिकॉज नेम ज्यादा है। पहले आप क्या करना है, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना है तो फर्स्ट यू फोकस ऑन नेम्स। एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोल रहे हैं, नॉर एपिनेफ्रिन अलग, नॉर एड्रिनलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का अल्डोस्टिरॉन, ऐसा जो है ना बहुत सारे अल्टरनेट नेम्स हैं, उनको याद रखना है। एंड रिमेंबर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इट इज आल्सो कॉल्ड 3F। एड्रिनल ग्लैंड को ही 3F ग्लैंड बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनलिन को 3F हार्मोन बोलते हैं। एड्रिनलिन को और नॉर एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं हम, 3F हार्मोन बोलते हैं। 3F हार्मोन मतलब 3 इमरजेंसी हैं, 3 इमरजेंसीज। एक होता है फियर, हाँ, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन। एक होता है फियर, एक होती है फाइट, एक होती है फ्लाइट। इसमें से तीनों में से कौन सा एक्सपीरियंस किए हैं आप, तीनों भी। फियर डर लगा होगा, पेरेंट्स से डर गए होंगे, फाइट किसी से लड़े होंगे, राइट। उस सिचुएशन में जो जो चेंजेस थे बॉडी में, वो सारे चेंजेस एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुए थे। और फ्लाइट है ना, फ्लाइट मतलब कहीं से जंप करे होंगे इंटेंशनली, कोई ढकल दिए वो अलग बात है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, इंटेंशनली। तो ये थे एड्रिनल ग्लैंड के सारे फंक्शंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम बोलेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, हेटेरोक्राइन, heterocrine gland, composite gland. It is having both exocrine part and endocrine part.
both exocrine and endocrine part. इसलिए heterocrine बोले, because it is having both exocrine and endocrine part. And what is the exocrine part? What is the exocrine part of the pancreas? Exocrine part of the pancreas is pancreatic acini. Pancreatic acini. And what is the endocrine part? Anybody? Endocrine part of the pancreas? Islets of Langerhans. Islets of Langerhans. मतलब देखिए, स्टमक के नीचे डियोडिनम का जो लूप है, लूप ऑफ डियोडिनम इज कनेक्टेड विथ पैनक्रियास, है ना? ये है पैनक्रियास। इसके अंदर दो पार्ट है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है, एंडोक्राइन वाला पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट मेक एंजाइम्स, एंडोक्राइन पार्ट मेक हार्मोन्स। सो विच पार्ट इज कंस्टिट्यूटिंग मेजर? स्टेटमेंट आ गया, विच वन इज मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियास, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? 1 or 2%, 1 or 2% of pancreas एंडोक्राइन होता है बस। बाकी का 98% क्या होगा? एक्सोक्राइन होगा। जस्ट 2% ऑफ पैनक्रियास इज एंडोक्राइन। और ये 2% मतलब कितना होता है मालूम? 1 or 2 million cells are islets of Langerhans. Islet of Langerhans कितना है? 1 or 2 million cells है। 1 or 2 million cells are islet of Langerhans. That is the endocrine part of the pancreas. Okay. कोई क्वेश्चन करना है? What is the function of pancreatic acini? Pancreatic acini produces pancreatic enzymes. ये पैनक्रियास के एंजाइम्स बनाएंगे। आइलेट ऑफ लांगरहंस क्या बनाएंगे? हार्मोन्स बनाएंगे। आइलेट ऑफ लांगरहंस मेक हार्मोन्स। सो पैनक्रियाटिक एसिनाई तो हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं यहां पर, बिकॉज टॉपिक तो हमारी हार्मोन्स की है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स पढ़ रहे हैं हम। फिर भी आप याद रख सकते हैं यहां पे पैनक्रियाटिक एसिनाई का वर्क क्या है? सीक्रेट एंजाइम्स। एंजाइम्स रिवाइज कर लेना आप, कौन कौन से एंजाइम्स थे पैनक्रियाटिक एसिनाई से? ट्राइकेमिस्ट्री, न्यूक्लिकार, एमिलिए ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, न्यूक्लियेजेस, अमाइलेज, लाइपेज, है ना? डाइजेशन टॉपिक में पूरी लिस्ट बनी हुई है। और आइलेट ऑफ लांगरहंस जो एंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लांगरहंस 1 or 2 million सेल जो बता रहा था मैं, आइलेट ऑफ लांगरहंस में हमारी एनसीईआरटी लिखता है देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स इन आइलेट ऑफ लांगरहंस। कितने टाइप के सेल्स? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे ऑथर्स अदर देन एनसीईआरटी 3 टाइप ऑफ सेल लिखे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है 2 टाइप ऑफ सेल्स। फाइनल हो गया अब ये 2 टाइप ऑफ सेल बोलते, अल्फा सेल, बीटा सेल। कुछ ऑथर है ना डेल्टा सेल भी लिखते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए भाई, कंफ्यूजन। डेल्टा सेल बोल के भी लिखते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है आइलेट ऑफ लांगरहंस कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल।
अल्फा सेल का काम है ग्लूकेगॉन हार्मोन तैयार करना, ग्लूकेगॉन हार्मोन। एंड बीटा सेल का वर्क है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन। कंफ्यूजन तो नहीं होता? अल्फा ग्लूकेगॉन, अल्फा एजी बी आई, अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन। Now let's see the situation when glucagon is produced, when insulin is produced in our body, and what are their work. Glucagon क्या कर रहा है, insulin क्या कर रहा है? चलिए, let's see the situation when we skip meals. When we skip meals या नहीं तो फास्टिंग में है, फूड वगैरह नहीं ले रहे, फास्टिंग में है, या मील्स हम स्किप कर देते हैं, दैट टाइम व्हाट आर द चेंजेस? सबसे पहले क्या होगा, व्हेन वी स्किप मील्स और फास्टिंग, अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लूकेगॉन। अब आएगा ग्लूकेगॉन। कब आ रहा है ग्लूकेगॉन? व्हेन वी स्किप आवर मील्स, मील्स नहीं लेने पर आ रहा है ग्लूकेगॉन। नॉर्मली अगर आप मील्स प्रॉपरली ले रहे हैं all the 3 times, then there is no need of glucagon. अगर मील्स नहीं लिए हैं पर्टिकुलर वन टाइम में तो ग्लूकेगॉन आएगा। और ग्लूकेगॉन का काम क्या है? देखो, ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन इज हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपर नाम से ही मालूम हो रहा, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपर, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिक, बिकॉज इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाउ इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या कराना चाहिए? अब ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट, स्टिमुलेट क्या कराएगा? कहां से लाएगा ग्लूकोज? कहां से लाएगा ग्लूकोज? देखिए, जितना ग्लूकोज आपके ब्रेन सेल्स को चाहिए पर मिनट, आपके आईज को चाहिए ग्लूकोज, है ना, ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनीज, ऐसे ऑर्गन्स हैं ये 24 आवर वर्क करते रहते हैं, मैक्सिमम वर्क करते रहते हैं, तो इनको चाहिए सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए बहुत ज्यादा। जहां पे ज्यादा वर्क हो रहा है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा होना, वहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए। और ऊपर से मील्स नहीं लिए, मील्स नहीं लेंगे तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ तो ग्लूकोज को बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, तो हु इज कमिंग टू इंक्रीज दिस ग्लूकोज लेवल? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट नंबर 1 ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जो एक्सेस ग्लाइकोजन था, एक्सेस फूड था आपके बॉडी में, है ना, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर थे लीवर और मसल्स में, वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होना शुरू होते हैं। यूजुअली कभी भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही ग्लूकोज स्टोर करके रख लेते हैं हम बॉडी में। लीवर, आवर बॉडी इज डिजाइंड इन दैट वे ओनली टू स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रख लेंगे, ये सोचता है हमारा लीवर और मसल्स, तो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता। अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और दूसरा क्या है? ग्लूकेगॉन है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। अब लास्ट 8 डेज से कुछ भी नहीं खाए, सपोज 8 डेज से कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ वाटर ड्रिंक करें, कुछ भी नहीं करें, तो लास्ट 8 डेज से हम किस पे थे? ग्लाइकोजन पे थे। कुछ भी नहीं होगा, सरवाइव होंगे। लास्ट 8 डेज से ग्लाइकोजन पे थे। अब आएगी बारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी अभी लिखा दिया मैं। बॉडी का नॉन कार्बोहाइड्रेट जितना भी मटेरियल है, प्रोटीन, फैट, उन सबको कार्बोहाइड्रेट बना दिया जाएगा, राइट? और क्या करेंगे? ग्लूकेगॉन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिचुएशन क्या है? why glucagon is doing all this work? Why it is breaking glycogen into glucose? Because body needs glucose supply, brain needs glucose supply, retina cells, eye cells, they require glucose supply, kidney require glucose supply. तो सबको ग्लूकोज चाहिए। और कहां पे रहना ग्लूकोज? ब्लड में। तो लीवर में जो जो ग्लूकोज था बाहर निकाल के लाए। एंड हु इज हेल्पिंग फॉर दिस? ग्लूकेगॉन, राइट? तो ग्लूकेगॉन, आई कैन राइट ग्लूकेगॉन decreases glucose uptake by the cells, uptake by the body cells. इवन हमारे हर सेल जो है, हमारे स्किन सेल, हर सेल जो है ट्राई करता है ग्लूकोज को अपने पास रख लेना। कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी ना ग्लूकोज को, चुप रख लेना ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकेगॉन आके क्या बोलेगा? कोई भी सेल ग्लूकोज नहीं लेगा। सबसे पहले ग्लूकोज सप्लाई होगा ब्रेन को, उसके बाद किडनी को, उसके बाद हार्ट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और कहां पे ज्यादा देना है ग्लूकोज? आइस को। जो जो वर्क कर रहे हैं ज्यादा उनको पहले सप्लाई करेंगे, ठीक है? तो सेल्स में ग्लूकोज आना बंद हो जाएगा। इवन सेल में जो भी ग्लूकोज है बाहर ढकेल दिया जाएगा इनटू द ब्लड, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर सारा ग्लूकोज मैं सेल के अंदर भेज दूं, क्या होगा? इफ ऑल द ग्लूकोज गो इनटू द सेल्स, देन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ग्लूकेगॉन डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी सेल्स। तो ये ग्लूकेगॉन का था फर्क। अभी हम इमेजिन करेंगे और एक सिचुएशन इंसुलिन का वर्क समझने के लिए। when we take meals, हाँ, मील्स, प्रॉपर मील्स ले लिए हैं, शुगर भी खा लें, कार्बोहाइड्रेट भी खा लिए, प्रोटीन भी खा लिए, फैट भी खा लिए, है ना? ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है आफ्टर मील्स। हर एक पर्सन में, नॉर्मल पर्सन, डायबिटिक पर्सन, सब में ग्लूकोज लेवल आफ्टर मील्स इंक्रीज ही रहता। आफ्टर मील्स व्हाट हैपेंस? आफ्टर मील्स ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? आफ्टर मील्स ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड, समझते हैं ना? चाहे आप कुछ भी खाइए, ग्लूकोज तो रहेगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट तो कंपलसरी है इन ऑल फूड। ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। अब आएगा बीटा सेल्स। बीटा सेल्स रिलीजेस इंसुलिन, insulin increases glucose uptake by the body cells। जैसे इंटरवल खत्म होने के बाद कहां जाना होता है आपको? क्लासेस में जाना होता है ना, पूरे जो है पूरे क्लासेस के अंदर चले जाना, एक भी बाहर नहीं दिखना। सेम ऐसे ही इंसुलिन जैसे ही ब्लड में रिलीज होना, तो पूरे ग्लूकोज है ना भागने लगते हैं सिर्फ, और पूरे ग्लूकोज कहां चले जाते हैं?
सेल्स के अंदर, पूरे छुप जाते हैं सेल्स के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंसुलिन is called hypoglycemic factor, is called hypoglycemic factor. Why it is called hypoglycemic factor? Because it decreases blood glucose level. ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराएगा ये, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कहां पे जा रहा है ग्लूकोज इतना सब? सेल्स के अंदर। ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी सेल इज इंक्रीजिंग, इंसुलिन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, ग्लूकेगॉन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर। अब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। हाइपोकैल्सीमिक, हाइपरकैल्सीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपरग्लाइसीमिक, 4 अलग अलग हार्मोन हैं, कंफ्यूज नहीं करना। हाइपोकैल्सीमिक TCT, हाइपरकैल्सीमिक PTH, हाइपरग्लाइसीमिक ग्लूकेगॉन, hypoglycemic insulin. Which hormone increases glucose uptake by the cells? इंसुलिन ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज कराएगा। अब मील्स ले लिए हैं, अब मील्स लेने के बाद क्या हुआ? अब मील्स में क्या, कभी कभी पार्टी होती है, पार्टी में फुल खा लेते हैं। अब क्या करना है? दावत में फुल खाने के बाद इंसुलिन आएगा ना बचाने के लिए आपको, और इंसुलिन क्या करेगा? पूरा एक्सेस ग्लूकोज को क्या करेगा? सेल्स के अंदर पहले डाल देगा, और इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? बाई, कैसे करना है ये? ग्लाइकोजेनेसिस कराना है, समझे? ग्लाइकोजन आया कहां से बोलो? ग्लाइकोजन आया कहां से? पार्टी को गए थे, किधर दावत को गए थे, तो एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज जमा कर लिए थे ना, वो सब ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, ग्लाइकोजेनेसिस के फॉर्म में। नेक्स्ट, सेकंड वन, लिपोजेनेसिस। अगर लीवर में और मसल में जगह नहीं बची, समझो पूरा फुल हो गया ग्लाइकोजन, कभी मील्स स्किप नहीं करे लाइफ में, फास्टिंग करे नहीं, यूज ही नहीं करे ग्लाइकोजन, तो वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लिपोजेनेसिस। साइंटिफिकली फास्टिंग करने से क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट था वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। लिपोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड्स, लिपिड फैट को बोलते हैं ना, लिख सकते हैं आप लिपोजेनेसिस, अगर आपको नहीं मालूम, लिपोजेनेसिस कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड्स, लिपोजेनेसिस। और अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग मतलब मंडे के दिन भी टेस्ट करे तो ग्लूकोज लेवल हाई आया ब्लड में, ठीक है भाई, संडे पार्टी थी, ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। ट्यूसडे के दिन भी चेक करे तब भी हाई आ रहा, वेडनेसडे के दिन भी चेक कर, कुछ तो गड़बड़ है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस है ये, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर मतलब कभी भी चेक कर रहे हैं ज्यादा ही आ रहा है ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज मेलिटस। कैरेक्टराइज बाई ग्लाइकोसोरिया, मालूम है आपको, एंड कीटोन्यूरिया। ग्लूकोज आना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसोरिया, presence of ketone bodies in urine, ketonuria. Both are the symptoms of diabetes mellitus. क्यों हुआ diabetes mellitus? Deficiency of insulin, इंसुलिन की कमी से होता है।
डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, नोट कर लेना। अब ऐसे लोगों को क्या चाहिए भाई, अब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा बिफोर मील्स। अभी मील्स जाने वाले हैं, मील्स लेने वाले हैं, तो पहले इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो, क्योंकि ग्लूकोज लेवल हाई होने वाला है ना आफ्टर टेकिंग मील्स। तो इतना भी ज्यादा ग्लूकोज ना हो कि वो डैमेज कर दे आपके ब्रेन को, आईज को, किडनीज को। इतना ज्यादा भी ग्लूकोज नहीं चाहिए, राइट। इतना आप पढ़ के आइए। आज की क्लास में हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़े हैं, देखिए, और पैनक्रियास पढ़े हैं। ये अच्छे से रिवाइज करके आइए। थैंक यू।